हेलो। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में ड्युअलिटी पढ़ रहे हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। इसमें अभी लास्ट वीडियो में भी हमने थ्योरम्स ही करी थी, उसके पहले हमने प्रॉब्लम्स करी थी और उस फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा ड्युअलिटी के जो भी टर्म्स हैं वो समझाई थी और ड्यूअल प्रॉब्लम किसी भी प्राइमल की ड्यूअल कैसे लिखते हैं वो हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया है और कुछ थ्योरम्स भी सॉल्व की हैं। आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्युअलिटी यहाँ पर देखेंगे कि क्या होती है। इफ अ फाइनाइट ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन exists for the primal problem, then there exists a final optimal feasible solution for dual problem and the value of two objective functions are the same if a finite optimal feasible solution exists for the primal या dual। अगर dual का होता है तो यहाँ primal आ जाएगा और यहाँ primal है तो यहाँ dual आ जाएगा। तो and the value of the two objective function are the same। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम कि कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमम ZP is equal to CX such that AX is less than or equal to B and all X is greater than or equal to 0 and its dual is minimum ZD is equal to B dash W। अब ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अगर P है तो प्राइमल है, D है तो डुअल है, डैश है तो ट्रांसपोज है, यहाँ डैश है तो ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है। Let us convert the primal problem to the problem equality form by introducing। अब यहाँ पर हम प्राइमल प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि ये लेस देन की है, तो लेस देन की है तो इसके अंदर हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर मैक्सिमम ZP इज इक्वल टू CX और AX प्लस IS इज इक्वल टू B में ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ ये और S जो है I इज द एसोसिएटेड M बाय N आइडेंटिटी मैट्रिक्स और S हमें पता है स्लैक वेरिएबल्स की। लेट X बी अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंप्लेक्स मेथड। Corresponding to XB, let B be the basis and CB contains the prices of the basic variables. Hence, we assume that B is greater than or equal to 0. Since XB is an optimal solution to the primal, then we have delta J is less than or equal to J for all J not appearing in the basis। अब यहाँ पर जो डेल जे है वो हमने CJ माइनस ZJ लिखा है। अगर इसको ZJ माइनस CJ लिखेंगे तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे फॉर ऑल J और यहाँ पर नॉट अपेयरिंग इन बेसिस। बट ZJ इज इक्वल टू CB B इनवर्स अल्फा J। CJ इज इक्वल टू CB B इनवर्स अल्फा J इज लेस देन और इक्वल टू 0 for all alpha j including surplus variable also। फिर CB B inverse alpha j is greater than or equal to CJ। CB B inverse alpha j को हमने alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 1 vector alpha 2 vector alpha n vector is greater than or equal to C1 C2 C3। यहाँ CJ है तो C1 C2 C3 Cn के बराबर। CB B inverse ये जो है A के बराबर है is greater than or equal to C for the value of A। Suppose ये है W CB B inverse के where W is equal to W1 W2 W3 dash transpose of W's is a column matrix of M by 1। Therefore from 3 we got transpose of W strict A is greater than or equal to C। दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेने पर हमने देखा W is greater than or equal to C dash। Clearly W satisfy the constants of dual problem second, then W is a solution of the dual problem 2। Now we consider 4 with alpha j corresponding to slack variable।
Hence Cj in this case becomes 0, so that 4 reduces to Cb. B इनवर्स जो अल्फा जे था वहां पर, उसकी जगह हमारा Ej आ गया. Ej क्यों आया? क्योंकि हमने वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली. J इज इक्वल टू 1 2 3. Cb B इनवर्स ये हमारा W डैश Ej इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. W की जगह हमने W1 W2 Wm. Ej इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Wj टेंड टू 0 फॉर J equal to 1 2 3. We show that W is a feasible solution to the dual problem. Second, next we show that W is an optimal solution to its dual problem. तो हमने minimum ZD consider किया. Consider minimum ZD. Maximum ZP है तो minimum ZD is equal to B dash W asterisk is equal to W star कह लो इसको dash B is equal to CB B inverse and so on. Since W and XB are feasible solution or dual problem and primal one respectively, W asterisk is dual का और XB जो है वो primal का feasible solution है. Such that maximum ZP is equal to minimum ZT. यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था. इसको अभी हम एक एग्जाम्पल लेके और प्रूव करेंगे. कुछ और थ्योरम्स हैं जिनको कि अभी हम यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन जिनका यूज हमारे बार बार आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट कर रही हूँ उसको. इफ एनी ऑफ द कांस्टेंट इन द प्राइमल इज अ परफेक्ट इक्वलिटी, द कॉरस्पॉन्डिंग ड्वेल वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. इफ एनी ऑफ द कांस्टेंट, मान लिए सेकेंड कांस्टेंट जो है वो परफेक्ट इक्वलिटी है. ठीक है, मीन्स कांस्टेंट में जो सेकंड इक्वेशन है, इनइक्वलिटी है, वो हमारी इक्वेशन है. तो कॉरस्पॉन्डिंग ड्वेल में जो सेकंड वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा. ये भी एक सवाल भी करेंगे हम. इफ एनी वेरिएबल ऑफ द प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, मान लीजिए कोई वेरिएबल है जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, सेकेंड वेरिएबल या 10th वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट इनटू ड्वेल मीन्स तो जो 10th कांस्टेंट होगा वो एक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी. वाइस वर्सा हमने देख लिया कि प्राइमल के अंदर जो कांस्टेंट हमारा इक्वलिटी में है, इक्वेशन फॉर्म के अंदर है, तो उसका जो ड्वेल है उसमें उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा. और इस सेकंड थ्योरम में हमने देखा कि जो वेरिएबल ऑफ द प्राइमल अगर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है उस ड्वेल के अंदर वो हमारी स्ट्रिक्ट इक्वलिटी होगी. उसके बाद एक और है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस. कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या होती है कि duality theorem is a unifying theory which relates the optimal solution of a primal problem to the optimal solution of its dual problem. This relationship can be understood more precisely by defining the concept of complementary slackness relating to problem in an optimal solution of a linear programming problem. If ith dualth variable is positive, then ith constant of the primal must be the equation. And if ith constant in the primal problem is strict inequality, then its ith dual variable must be 0. ये कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस. मीन्स ये रिलेशनशिप है जो कि हमारी ड्वेल और प्राइमल में है, तो उसकी जो एक प्रॉपर्टी है लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो ये दो प्रॉपर्टीज लीनियर प्रोग्रामिंग की है. थैंक यू.